Hello everyone, my name is Abhinav Rai. I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. Recently, I have completed my masters in mathematics in 2023, and I have almost 5 years of experience of teaching maths up to class 10th. Nowadays, I am working in LPM Public School, which is located in Gola Bazar, Gorakhpur, which is nearby my hometown. And today we are going to study about arithmetic progression. So let's start without any delay. So first of all, arithmetic progression. Today we will study about arithmetic progression and what will be the objective. Objective will be definition, general term, and nth term of AP. So today we will study what about definition, general term, and nth term of the AP, and then we will conclude our session. So if we are going to start the arithmetic progression, so we must know why we study arithmetic progression and what is the definition of the arithmetic progression. So when you will study, then you will understand that the arithmetic progression is the fundamental unit of studying any pattern or any sequence or series. Why I said the fundamental? Because from here you will connect all the sequence and series very easily. So for connecting all the series very easily in your higher classes, like when you will study in class 12th or when you will be preparing for any competitive examination, then there will be the role of the arithmetic progression will be very effective for your further studies. Like if you are preparing for you are solving calculus or you are studying data science, then it will be very beneficial. So as we know that arithmetic progression is very important, so let's start it and understand it, how it works and how we will do problems and how we will solve these type of problem which come in arithmetic progression. So let's start with arithmetic. What is arithmetic progression? If I start arithmetic progression, so first of all, let's take a daily life example, like you start saving 10 rupees per day. So if you start saving 10 rupees per day, so what will be the pattern, what will be the sequence? So if you are saving 10 rupees today, so what will how much money you will save tomorrow? It will be 20. The day after tomorrow it will be 30, and this will goes like that. Okay, so it will be like 10, 20, 30, 40 and etc. Okay, so if I tell you to observe this sequence or this series, so what you will observe? So you will find that every number like 10, 20, 30, there is the difference of 10 in between two consecutive numbers. When you will go from 10 to 20, it is the difference of 10. When you will go 2 to 30, it will difference is 10. When you will check 30 and 40, then there is also the difference of 10. So what is the basic and what is the common factor in this series? That the common difference of every number is, when you check, the common difference is 10. ठीक है, जब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हर जगह क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस 10 मिल रहा है. कॉमन डिफरेंस क्या है कि जब आप टर्म 2 में से टर्म 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 10 मिल रहा है, टर्म 3 में से टर्म 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 10 मिल रहा है, टर्म 4 में से टर्म 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको 10 मिल रहा है. मतलब कि इसमें हर एक एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म मिल जा रहा है. एक टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं, जैसे इसमें अगर कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है. इसमें हम लोग 10 ऐड किए तो क्या हो गया, 20 हो गया. 20 में 10 ऐड किया तो क्या हो गया, 30 हो गया. 30 में 10 ऐड किया तो क्या हो गया, 40 हो गया. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है. क्या मिल रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस. इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं. कैसे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं. और इसको लेट से अगर हम लोग इसको फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म 1 बोल देते हैं. ये क्या हो गया, टर्म 2 हो गया इस सीरीज़ का, ये टर्म 3 हो गया इस सीरीज़ का, ये टर्म 4 हो गया इस सीरीज़ का. तो ऐसे ये टर्म 1 हो गया, तो टर्म 1 को अगर हम लोग लेट से ए बोल देते हैं,
तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि टर्म 1 को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे ए से, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाई ए एंड कॉमन डिफरेंस विल बी डिनोटेड बाई डी। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी से। कैसे हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, सेकंड टर्म में से किसी भी टर्म, आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर देंगे। अगर वही चीज़ बार बार मिल रही है तो हमें वो क्या बताएंगे कि ये क्या है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बेसिक डिफिनीशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई सीरीज़ लिखी हुई है तो उन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है, कांस्टेंट है, सेम है। ऐसे सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। The common difference between two consecutive numbers are always constant. It is known as arithmetic progression. Okay? तो चलिए अब यहाँ से हम लोग आई होप आपको डिफिनीशन समझ में आया होगा। अगर हम लोग जनरल टर्म लिखने की कोशिश करें तो जनरल टर्म अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो हम लोग इसी एग्जांपल से लिखने की कोशिश करते हैं जनरल टर्म को। सपोज ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ये टर्म 1 है, और टर्म 1 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम लोग टर्म 2 को पाना है तो हम लोग क्या करते हैं, टर्म 1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे रहे थे। अगर टर्म 3 को पाना है तो टर्म 2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे रहे हैं। टर्म 4 को पाना है तो टर्म 3 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें, मतलब कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और हमें अपना सीरीज मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे है, अब ये 40 है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इससे कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 60 हो। तो ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी जहाँ तक इसको चलने का मन करेगा। ठीक है, अब अगर इसी चीज़ को हम लोग को जनरल फॉर्म में लिखना है, एक बेसिक लैंग्वेज में लिखना है जिसको देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए ए है, इसमें हम लोग डी जोड़े थे, मतलब कॉमन डिफरेंस जोड़े थे जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे डी जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इस पर भी डी जोड़ने पर आगे बढ़ गया था, तो इस पर फिर डी जोड़ देंगे, तो फिर डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम लोग डी जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम लोग अब बात करें कि nth टर्म क्या होगा, तो n टर्म मतलब tn टर्म की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tn हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि tn टर्म क्या होगा। tn मतलब लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, n टर्म कोई ऐसा टर्म जो हम लोग जानना चाह रहे हैं आगे, उसकी बात हो रही है। अब tn टर्म की बात हो रही है, तो आप यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ पे d नहीं है, पर यहाँ पे जब टर्म 2 की बात हो रही है तो यहाँ पे एक ही डी है। टर्म 3 की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 डी है। टर्म 4 की बात हो रही है तो यहाँ पे 3 डी है। मतलब क्या कि एक डी कम हो जा रहा है, हर एक टर्म में से एक डी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म में सिर्फ एक डी कम होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, तो ए तो रहेगा ही रहेगा, ए प्लस एन में से एक कम होगा, तो एन में एन क्या है तो हमें पता नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे n-1। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाई डी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। T1 अगर हम लोग बात करेंगे तो ए है, T2 क्या है, ए प्लस डी है। T3 क्या है, ए प्लस 2d है। T4 क्या है, ए प्लस 3d है, और ऐसे ही चलता चला जाए। तो अगर हम लोग Tn लिखने की कोशिश करें तो Tn क्या है यहाँ से, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये Tn टर्म है, ये Tn टर्म है किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी Tm टर्म का यूज़ क्या है, Tm टर्म का हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो Tm टर्म का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Tn टर्म मतलब कि कौन सा, मान लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे आप 10 रुपये सेव कर रहा है, ठीक, तो मतलब आप 20वें दिन को कितने रुपये सेव कर चुके होंगे, या फिर आप 25वें दिन कितना रुपया सेव कर चुके होंगे। तो इस Tn टर्म का यूज़ करके हम लोग क्या तुरंत उसको पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 25वें दिन आप कितना रुपया सेव कर चुके होंगे, मतलब 25वें दिन कितना रुपया बचाएंगे। तो अगर 25वें दिन की बात हो रही होगी तो T25 की बात हो रही है, और T25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 24d, क्योंकि जब Tn के फॉर्मूले में रखेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 25 - 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा ए प्लस 24d। तो ऐसे हम लोग अब
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आपको भी हो जाएगा कि 25 मिलेगा तो हमें इतना प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है क्या a+24d। अब a+24d हो गया। अब हमें पता करना है 25वें दिन कितना रुपया होगा। तो 25वें दिन का रुपया पता करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। a और d की वैल्यू अभी हमें ये नहीं पता है तो हम लोग इसी सीक्वेंस को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसी में से हम लोग a ले लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा यहाँ से 10, और d कैसे निकालेंगे t2 माइनस t1। तो d भी क्या है आपका 10 है। यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 10 + 24 इंटू d इज़ 10। तो t कितनी बार है 25 है ना, तो t 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 240 विच इज़ इक्वल टू 250 रुपीज़। मतलब 25वें दिन आप कितना सेव करेंगे 250 रुपीज़। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा TN टर्म से कि उसने दिन क्या हो गया। अब मान लीजिए अगर आपके पास 225 रुपये है या फिर 500 रुपये है, ठीक है, तो 500 रुपये है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 500 रुपया आप 500 रुपया किस दिन सेव करेंगे, कौन से वाले दिन पे 500 रुपया सेव करेंगे, तो यहाँ से पता लग जाएगा। n की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग n की मतलब TN टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको बोल दिया गया कि 500 रुपीज़ है, ठीक है, TN क्या है आपका 500 है, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी। अगर इसी सीरीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं तो 500 तो उसको हम लोग रख लेते हैं 500। a क्या है यहाँ पे 10 है प्लस n-1 इंटू डी क्या है, d भी 10 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे 500 इज इक्वल टू 10 + 10n - 10, यहाँ 10 से 10 चला गया तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 500/10 विच इज़ इक्वल टू 50। मतलब 50वें दिन जो हम लोग कितना रुपया हम लोग के पास हो चुका रहेगा, 50वें दिन हम लोग के पास कितना रुपया हो चुका रहेगा 500 रुपया हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि डेफिनेशन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़े हैं जनरल टर्म, फिर हम लोग पढ़े हैं एन टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, आपको कुछ यहाँ से और एडिशनल वैल्यू मिली है इस लेक्चर से। और अब हम लोग अगले दिन जो सेशन रखेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे हम, अगर ये लिखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे 200 तक लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम लोग पूरे सीरीज़ का सम करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड आल्सो एंजॉय दिस लेक्चर। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।